दूसरी कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको पूरी तरह से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है एंड विथ डिलीजेंस एंड अटेंटिव होकर पढ़ने की ज़रूरत है। Some books also may be read by dictee and extracts made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books, else distilled books are like common distilled waters, flashy things. और कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आपके डिप्टी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उनमें जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसको आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी और ने पढ़ी है और उसने कुछ एक्सट्रैक्ट्स को आपके लिए पढ़ने के लिए सजेस्ट किया है। तो कुछ बुक्स ऐसी होती है जो इस तरह से पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो तभी होनी चाहिए इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, जब बुक जो है वो कम इम्पोर्टेंस की है, ठीक है, कम इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज सभी बुक्स को अगर इस तरह से पढ़ा जाएगा तो वो सिर्फ कैसी होंगी, डिस्टिल्ड वाटर की जैसी होंगी, ठीक है। And there are some books must be studied seriously and thoroughly, and every fact and every allusion must be consulted and fully mastered. Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. तो रीडिंग जो है वो फुल मैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल he had need have a great memory, if he confer little he had need have a present wit, and if he read little he had need have much cunning to seem to know that he doth not. So reading makes a full man, conference a ready man, and writing an exact man. And therefore अगर कोई व्यक्ति कम लिखता है तो he had need have a great memory, तो उसको ज़रूरत है एक ग्रेट मेमोरी की। एंड इफ़ ही कॉन्फर लिटिल, अगर वो कम लॉजिकल बातें करता है, ठीक है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट, अगर वो कम बातें करता है, ठीक है, टॉकेटिव नहीं है, तो ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो उसको हाजिर जवाबी होना चाहिए। एंड इफ़ ही रीड लिटिल, और अगर वो कम पढ़ता है तो उसको इस तरह से बात करनी चाहिए कि सामने वाले को पता नहीं लगे कि उसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, ठीक है। मीन्स if a man is not in the habit of writing, he can make up his deficiency of writing by means of a good memory. And if a man does not take an active part in discussion, his deficiency can be made up by his gift of sharp intelligence and ready wit. And if a man does not read much, he can pull on if he is naturally gifted with cleverness and cunning. And he can pause that he does not lack an intensive reading. Bacon means to say that those who are cunning, who have a great memory, who are ready-witted, can do well in the world even without deep studies. Histories make men wise, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट। तो हिस्ट्री जो है वो व्यक्ति को कैसा बनाती हैं, वाइज बनाती हैं। पोइट्स जो है वो विटी बनाती है। द मैथमेटिक्स की स्टडी जो है वो आपको सटल बनाती है। नेचुरल फिलॉसफी की जो स्टडी है वो आपको क्या बनाती है, डीप बनाती है। और मॉरल जो स्टडीज़ है वो आपको क्या बनाती है, ग्रेव। और लॉजिक और रेटोरिक जो है वो आपको कंटेंट बनाती है, मतलब यू विल बी एबल टू you will be able to argument, ठीक है। means he says that the study of history makes a man wise. When a man reads histories of different countries and peoples, he learns about their deeds and misdeeds,
And the study of poetry makes man witty by teaching him beautiful and apt expression. And the study of mathematics develops our power of concentration. ठीक है, मीन्स मैथमेटिक्स की जो स्टडी है वो आपका जो कंसंट्रेशन का पावर है उसको क्या करती है, डेवलप करती है. एंड द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेस मेक्स आवर माइंड डीप बाय acquainting us with the profound secrets of nature. And the study of ethics makes us serious minded. The study of philosophy makes us serious minded and thoughtful and deep. And the study of logic and rhetoric gives us the powers of debating and arguing. So the various subjects of study develops in us various capabilities. Nay, there is no staunt or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies, like as disease of the body may have appropriate exercise. ठीक है, तो जैसे कि बॉडी की जो भी कोई डिजीज़ है वो एक अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज से ठीक की जा सकती है, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी से ठीक की जा सकती है, जैसे कि बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टोमक, राइडिंग फॉर द हेड एंड द लाइक. तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स, और शूटिंग जो है इट इज़ द बेस्ट फॉर लंग्स एंड ब्रेस्ट, एंड जेंटल वॉकिंग इज़ बेस्ट फॉर योर स्टोमक, एंड राइडिंग इज़ फॉर head. वैसे ही so if a man's wit be wandering, let him study the mathematics, for in demonstrations if his wit be called away never so little he must begin again. तो अगर किसी के पास में कंसंट्रेशन की कमी है, ठीक है, if a man's wit be wandering, तो उसे क्या करना चाहिए, let him study the mathematics, उसे मैथमेटिक्स की स्टडी करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उसका अगर ज़रा सा भी कंसंट्रेशन हटता है और उसका अगर ज़रा सा भी ध्यान चूकता है तो उसको जो भी पहले वाला पढ़ा हुआ है या फिर जो भी एक्सरसाइज वो सॉल्व कर रहा होगा उसको वो एक्सरसाइज फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी. ठीक है, तो उसकी वजह से उसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा. ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन की कमी है तो लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स. एंड if his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are simony sectors. और अगर किसी की विट जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है, डिफरेंस नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उसको स्कूल मैन की स्टडी करनी चाहिए. क्योंकि स्कूल मैन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्लिटर्स ऑफ हेयर्स, बाल की खाल निकालने वाले. ठीक है, एंड if he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyers cases. और अगर किसी के पास में लॉजिक्स की कमी है, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर पाते हैं और जो प्रूव नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, let him study the lawyers. तो उसको किसकी स्टडी करनी चाहिए, लॉयर्स के केसेस की स्टडी करनी चाहिए. ठीक है, so every defect of the mind may have a special receipt. ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशंस हैं. तो ये ऐसे था बेकन का लिखा हुआ ऑफ स्टडीज़. छोटा सा ऐसे है लेकिन कम शब्दों में ज़्यादा बात कही गई है यहाँ पर बेकन के द्वारा. लैंग्वेज जो है वो बहुत ही एप्ट है. ठीक है, लैंग्वेज जो है वो बहुत ही एप्ट है और इफ़ेक्टिव लैंग्वेज यहाँ पर बेकन ने यूज़ की है. ठीक है, तो ये बेकन की राइटिंग स्टाइल है कि उन्होंने हमेशा कम से कम शब्दों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की कोशिश की है.